কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এবাৰ হাতত লৈছে এখন বৃহৎ আঁচনি। পথ দুৰ্ঘটনা যদি কোনো লোকৰ সংঘটিত হয় তেতিয়াহলে যদি পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে সেই ব্যক্তিৰ চিকিৎসা হ'ব বিনামূলীয়া। আৰু ইতিমধ্যেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সেই আঁচনি মুকলি কৰা হৈছে, আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে। যদি কোনো ব্যক্তিৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় সেই ব্যক্তিয়ে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰক্ষীক জনাব লাগিব যে মোৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু তাৰ পাছতে 1.5 পৰা 2 লাখ টকা চিকিৎসাৰ নামত লাভ কৰিব। সবিশেষ খবৰ আঁচনিখনৰ সন্দৰ্ভত আমি লৈ আহিছো। পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হলে বা পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা লোকলৈ নগদবিহীন চিকিৎসা ঘোষণা চৰকাৰৰ। 1.5 পৰা 2 লাখ টকা পৰ্যন্ত চৰকাৰে বহন কৰিব চিকিৎসাৰ বাবে। পথ পৰিবহন বিভাগে ঘোষণা কৰিছে বৃহৎ আঁচনি। এক বৃহৎ আঁচনি হাতত লৈছে পথ পৰিবহন বিভাগে। পথ দুৰ্ঘটনাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰক্ষীক জনালে এই আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰিব ধন। 1.5 পৰা 2 লাখ টকা দিয়া হ'ব। 7 দিন বা সৰ্বাধিক 1.5 লাখ টকা চৰকাৰে আগবঢ়াব চিকিৎসাৰ বাবে। এক বৃহৎ আঁচনি হাতত লৈছে। হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনাত যদি পথচাৰীৰ মৃত্যু হয় চৰকাৰে আগবঢ়াব ক্ষতিপূৰণ। এটা ডাঙৰ খবৰ, হিট এণ্ড ৰানত মৃত্যু হলে তেতিয়াহলে চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ দিব। ক্ষতিপূৰণ হিচাপে 2 লাখ টকাৰ সাহায্য লাভ কৰিব দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে। প্ৰথম অৱস্থাত নিৰ্বাচিত ৰাজ্যই লাভ কৰিব এই আঁচনিৰ ধন। আৰু ইতিমধ্যে বৃহৎ আঁচনি হাতত লৈছে এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। এটা ডাঙৰ খবৰ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে দেশবাসীলৈ আগবঢ়াইছে আঁচনি। পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হলে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰক্ষীক খবৰ দিব লাগিব। পথ দুৰ্ঘটনাৰ পৰিসংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লৈছে বৃহৎ আঁচনি। হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনাত যদি পথচাৰীৰ মৃত্যু হয় বৃহৎ ক্ষতিপূৰণ দিব চৰকাৰে। প্ৰতিখন ৰাজ্যত ড্ৰাইভিং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ সেৱা বৃদ্ধিৰো সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ। পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা লোকলৈ বিনামূলীয়া চিকিৎসা ঘোষণা, অৰ্থাৎ 1.5 পৰা 2 লাখ টকা পৰ্যন্ত চৰকাৰে চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰিব। যদি কোনো ব্যক্তি পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় নতুন নিয়ম অনুসৰি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰক্ষীক জনাব লাগিব। যদি আপুনি চৰকাৰৰ সুবিধা বিচাৰিছে, আঁচনিৰ যদি সুবিধা বিচাৰে তেতিয়াহলে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ লগে লগেই পৰিয়ালৰ লোক বা আত্মীয়ই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰক্ষীক জনাব লাগিব যে মোৰ আত্মীয়ৰ বা মোৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তাৰ পাছতেই যেতিয়া আপুনি চিকিৎসালয়লৈ যাব 1.5 পৰা 2 লাখ টকা আপুনি লাভ কৰিব বা চৰকাৰে বহন কৰিব 1.5 পৰা 2 লাখ টকা পৰ্যন্ত। দুৰ্ঘটনা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কিন্তু আৰক্ষীক খবৰ দিব লাগিব। এই আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰিব ধন। 7 দিন বা সৰ্বাধিক 1.5 লাখ টকা চৰকাৰে আগবঢ়াব চিকিৎসাৰ বাবে। 7 দিনৰ চিকিৎসা চৰকাৰে আপোনাক বিনামূলীয়াকৈ আগবঢ়াব। হিট এণ্ড ৰান ঘটনা যিহেতু বৰ্তমান সংঘটিত হৈ আহিছে ৰাজ্যত, আৰু হিট এণ্ড ৰান ঘটনাত যদি পথচাৰীৰ মৃত্যু হয় বা কোনো লোকৰ যদি মৃত্যু হয় চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ আগবঢ়াব পৰিয়ালক। ক্ষতিপূৰণ হিচাপে 2 লাখৰ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াললৈ। প্ৰথম অৱস্থাত নিৰ্বাচিত ৰাজ্যই লাভ কৰিব আঁচনিৰ ধন। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে দেশবাসীলৈ আগবঢ়াইছে বৃহৎ আঁচনি। পথ দুৰ্ঘটনাৰ পৰিসংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লৈছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত। পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হলে লগে লগে খবৰ দিয়ক আৰক্ষীক, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই বৃহৎ আঁচনিৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে, মন্তব্য শুনক। पहले प्रायोरिटी रोड सेफ्टी के लिए थी, और रोड सेफ्टी में 2024 का जो ये आ रहा है उसमें 1,80,000 मौतें हुई है। 30,000 लोगों की मौतें जो है वो हेलमेट न पहनने के कारण हुई है। दूसरी गंभीर बात यह है कि 18 से 34 वयोवर्ग में 66% मौतें हुई है। हमारे स्कूल और कॉलेज के सामने एग्जिट एंट्री पॉइंट में उसकी ठीक व्यवस्था न होने के कारण 10,000 बच्चों की मौतें हुई है। हमारी स्कूल के लिए जो ऑटो रिक्शा है और जो मिनी बस है उसके बारे में भी हमने नियम बनाए ताकि इसके एक्सीडेंट में बड़े प्रमाण पर मौतें हुई है। तो पहली बात तो रोड सेफ्टी, इस विषय पर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई, और ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना, रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने सुधार किए हैं, और ड्राइवर्स के बारे में लेन डिसिप्लिन है। बाद में सिग्नल का कानून के प्रति आदर और सम्मान रखने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के न होने के कारण ऐसे भी लोगों ने गाड़ियां चलाई, उसके कारण भी करीब 3,000 मौतें हुई है। तो ये सब आइडेंटिफाई करके रीज़न पे चर्चा हुई, और आगे सबने मिलकर ये निर्धार तय किया है कि हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट एजेंडा था वो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का था। हमारे देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है, और उसके ऊपर भी आज हमने एक नई पॉलिसी बनाई है
और वो पॉलिसी जो है इस किताब में जो आपको देंगे तो ये भी चर्चा उसमें हुई। बाद में जब एक्सीडेंट होता है तो हमने एक नई स्कीम शुरू की है, कैशलेस ट्रीटमेंट। और एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर जैसे पुलिस में इंफॉर्मेशन जाएगी तो डॉक्टर जो होगा उसको, जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। बाद में हीट एंड रन विक्टिम्स जो है उसमें भी मृत्यु होती है तो हम 2 लाख रुपए देंगे। इसके साथ साथ ये कैशलेस ट्रीटमेंट में हमने पायलट प्रोजेक्ट कुछ राज्यों में किए, कुछ कमियां ध्यान में आई, उसको सुधार कर अब नए आदेश हम वितरित करेंगे और ये भी निश्चित रूप से उपयोगी होगा। IIT मद्रास ने एक अच्छा ऐप तैयार किया है जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक प्रकार जो अनेक रिफॉर्म है वो सब उसमें आए हैं, तो उसको भी लॉन्च किया गया। हम सर्कुलेशन इकोनॉमी को प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्राधान्य दिया है और इसलिए स्क्रैपिंग पॉलिसी इसके बारे में डिटेल चर्चा हुई। अभी जो गाड़ी लेते समय जो रजिस्ट्रेशन फी होती है उसमें अगर आपके पास स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होगा तो नई गाड़ी खरीदते समय आपको 50% यानी 50,000 रुपये की सहूलियत देने की योजना है। उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने 1.5 से 3% तक कॉस्ट में अगर सर्टिफिकेट हो तो वो भी सहूलियत देंगे। अब नई गाड़ी खरीदते समय पुरानी गाड़ी को स्क्रैपिंग करने के बाद उसके सब फायदे जो है अब मिल रहे हैं और जिसके कारण देश में बड़े प्रमाण पर ये स्क्रैपिंग सेंटर शुरू हुए हैं। अभी ये संख्या हमारी अपेक्षा से कम है, करीब 78 to 82 वहाँ भी चालू हुए हैं, पर कम से कम 1,500 सेंटर्स खुले। और जो भारत सरकार की योजना है कि राज्य सरकार अगर अपनी गाड़ियाँ बसेस ट्रक स्क्रैपिंग करती है तो उनको कुछ मदद भी दी जाती है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई और ये भी आज मीटिंग की प्रमुख विशेषता थी। स्क्रैपिंग के कारण हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी क्योंकि एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, स्टील एंड प्लास्टिक इसका रिसाइकलिंग होता है और अभी कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऐसे हैं। अभी मारुति का स्क्रैपिंग सेंटर है, सुजुकी का, उसके पार्ट जापान में एक्सपोर्ट हो रहे हैं और टायर जो है उसकी भी पाउडर हम बिटुमेन में डाल रहे हैं। तो ये एक सर्कुलेशन इकोनॉमी सबसे पहले प्रायोरिटी